Hello everyone, this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss the exercise questions of class 4 chapter 11 the earth and its neighbors. So if you have missed the explanation of this chapter, links are given in the description box. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignments given in your textbook. All the links are given in the description box below. So now, without further ado, let's start with today's class. Section A, choose the correct answer. Question number 1. The innermost layer of the earth is called. अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं, तो सबसे इनरमोस्ट लेयर जो था उसको क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी कोर. देन क्वेश्चन नंबर 2. द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम. अर्थ क्या करता है? रोटेट करता है. जब रोटेट करता है तो वो अपनी ही जगह पे घूमता है, मीन्स स्पिन करता है अपनी एक्सिस पे. किस साइड से किस तरफ? दैट इज ऑप्शन सी वेस्ट टू ईस्ट. ओके, moving on to question number 3. Days and nights are caused due to. दिन और रात किस वजह से होती है? Because of rotation of the earth. Option C is the correct answer. Next question number 4. The hottest planet of the solar system is the. इनमें से कौन से planet को सबसे hottest planet कहा जाता है? So the answer is option B, Venus. Question number 5. Which of the following planets is also called red planet? इनमें से कौन से planet को red planet भी कहा जाता है? So option C, Mars is the correct answer. Now question number 6. A group of stars with a definite pattern. Stars का वो group, stars का वो समूह जो कि एक फिक्स्ड पैटर्न दिखाता है या बनाता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी कॉन्स्टिलेशन. क्वेश्चन नंबर 7. अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड. तो जो सेलेस्टियल बॉडी मीन्स जो स्पेस में जो एक ऑब्जेक्ट है, एक हेवनली बॉडी है जो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमती है, उन्हें क्या कहा जाता है? दोज आर कॉल्ड सैटेलाइट. Option A is the correct answer. Now moving on to our next section, that is section B, give short answers. Question number 1 पूछा गया है, name the planets of our solar system according to their distance from the sun. सोलर सिस्टम में 8 planets हैं, राइट? सो इन 8 planets के नाम हमें बताने हैं उनके सन से डिस्टेंस को नज़र में रखते हुए. मतलब जिसका सबसे कम डिस्टेंस है सन से, उसका नाम हमें पहले लिखना है एंड देन लास्ट में किसका नाम आएगा? जिसका डिस्टेंस सन से बहुत ज़्यादा है. तो उस डिस्टेंस के बेसिस पे हमें उन 8 प्लैनेट के नाम लिखने हैं. सो व्हाट आर दोज नेम्स ऑफ planets of solar system according to their distance from the sun? Those are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and last में Neptune. So these are 8 planets of our solar system. Next question number 2. What is a constellation? Constellation क्या है? A group of stars with a definite pattern is called constellation. सितारों का वो समूह जो कि एक डेफिनाइट पैटर्न बनाता है उसको कहा जाता है कॉन्स्टलेशन. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3. नेम द लेयर्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के लेयर्स के नाम बताने हैं. सो द लेयर्स ऑफ अर्थ आर क्रस्ट, देन मेंटल एंड सबसे इनरमोस्ट लेयर का नाम क्या है? दैट इज कोर. क्वेश्चन नंबर 4. Name the satellite that is the natural satellite of the earth. अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट का नाम बताना है. सो द आंसर इज मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. क्या है हमारा नेचुरल सैटेलाइट? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून. क्लियर?
Section C, answer the following questions. Question number 1. What is a star? Star क्या है and how is it different from a planet? और वो planet से different कैसे है? Let's see the answer. So star is a fiercely hot ball of gases. स्टार क्या होती है? वो बहुत ही गर्म हवाओं का एक गोला होता है, ठीक है, गैसेस का एक गोला होता है. इनफैक्ट अ स्टार इज अ स्पेयर ऑफ ग्लोइंग गैसेस. स्टार्स हैव देयर ओन लाइट. इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि स्टार एक ऐसा स्पेयर है जिसमें ग्लो करने वाली गैसेस होती हैं और स्टार्स की इसीलिए खुद की एक लाइट होती है. तो प्लैनेट से डिफरेंट कैसे हुए? सो प्लैनेट्स ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ प्लैनेट्स क्या है? दे आर लार्ज हेवनली बॉडीज दैट ऑर्बिट अ स्टार. प्लैनेट्स एक ऐसे हेवनली बॉडीज हैं जो कि स्टार के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है. अब ये जो प्लैनेट्स है, दीज मे बी मेड ऑफ गैस. गैस से भी बन सकते हैं, मेटल से बन सकते हैं, या फिर उनमें रॉक्स भी हो सकता है. एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, दैट इज ऑल्सो अदर स्टार, इन इट्स फिक्स्ड पाथ. और ये जो प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं. सन भी क्या है? एक तरीके का स्टार ही है. तो वो प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूमते हैं अपनी एक फिक्स्ड पाथ में, अपने एक फिक्स्ड इलाके में, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लैनेट. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, आस्किंग डिस्टिंग्विश बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन और रेवोल्यूशन में डिफरेंस बताना है. सो लेट्स सी फर्स्ट अबाउट रोटेशन. रोटेशन क्या है? स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. अपने ही एक्सिस पे घूमने को कहा जाता है रोटेशन. और रेवोल्यूशन क्या है? मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. और सन के इर्द गिर्द घूमने को कहा जाता है रेवोल्यूशन. तो मतलब अर्थ जब अपने ही एक्सिस पे घूमेगा तो उसे हम कहेंगे रोटेशन, और जब अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमेगा तो उसे हम कहेंगे रेवोल्यूशन. तो ये हो गया पहला डिफरेंस. नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? रोटेशन की वजह से क्या होते हैं? डेज एंड नाइट्स. सो द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. और रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स होते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं. सो द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन्स. क्लियर? सो दीज आर द टू डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. Question number 3. How are days and nights formed? Explain with a diagram. तो एक डायग्राम के साथ हमें बताना है कि दिन और रात एक्चुअली होते कैसे हैं, ठीक है, कैसे फॉर्म होते हैं. सो वन रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक्स 24 आवर्स. एक रोटेशन मीन्स अर्थ का अगर ये एक्सिस है, ये अगर ये अर्थ का एक्सिस है तो इसको पूरा घूमने में, अपने ही एक्सिस में इस अर्थ को घूमने में 24 आवर्स लगेंगे, ठीक है. सो नाउ रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट ऑन द अर्थ. और इसी रोटेशन की वजह से मीन्स अपने ही एक्सिस पे जब ये घूम रहा है अर्थ, तो इसी रोटेशन की वजह से डेज और नाइट्स हो रहे हैं. जिस पार्ट में, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट रिसीव्स सनलाइट हैज डे while the other part has night. सो जिस पार्ट पे सूरज की रोशनी होगी उस टाइम पे, उस पार्ट पे क्या होगा? दिन होगा. और जिस पार्ट में सूरज की रोशनी नहीं होगी, दैट पार्ट विल बी द नाइट. तो पिक्चर में जैसे आप देख सकते हैं, इस साइड पे जब सूरज की रोशनी पड़ रही है, दीज आर दी सन रेज, तो वहाँ पे क्या है? डे. एंड जिस साइड पे अंधेरा है, सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पा रही, उस तरफ उस टाइम पे क्या है? रात, दैट इज नाइट. एंड द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड. आप देख सकते हैं अगर ये अर्थ का है, अर्थ की एक्सिस है, तो दिस अर्थ इज अ लिटिल बिट टिल्टेड, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है. और इसी वजह से डेज एंड नाइट्स आर नॉट डिवाइडेड इक्वली इंटू 12 आवर्स ईच इन मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. और इसी वजह से ये जो दिन और रात का टाइमिंग है, दैट इज 24 को अगर हम हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 12 घंटे.
तो 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात नहीं है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, बिकॉज अर्थ जो है वो थोड़ा टिल्टेड है। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा है कि एक्सप्लेन हाउ सीजन्स अकर। हमें बताना है कि सीजन्स कैसे होते हैं, ठीक है, कैसे वो फॉर्म होते हैं। सो द आंसर इज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट, द मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। तो जब अर्थ सन की इर्द गिर्द घूमता है, हमें पता है ये चीज, और इसी मूवमेंट को क्या कहा जाता है? रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 365 and 1/4 days। ठीक है। नाउ रेवोल्यूशन की वजह से द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द टिल्टेड एक्सिस कॉजेज सीजन। तो इस रेवोल्यूशन की वजह से साथ ही में अर्थ का टिल्टेड एक्सिस है, मीन्स टेढ़ा एक्सिस है, उसकी वजह से ही होते हैं सीजन्स। तो जब when the north pole is toward the sun, it is summer in the northern hemisphere and winter in the southern hemisphere. And when the north pole is turned away from the sun, it is winter in the northern hemisphere and summer in the southern hemisphere. तो क्या होगा? जब नॉर्थ पोल सन के डायरेक्शन में है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे समर होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे विंटर होगा। तो ऐसे अगर हम चीज़ को उल्टा कर दें कि जब नॉर्थ पोल सूरज की रोशनी से दूर है, मीन्स सूरज से दूर है, अवे है, उस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। ठीक है। सो दिस इज हाउ द सीजन्स आर बीइंग अकर्ड। क्लियर? चलिए अब चलते हैं सेक्शन डी में, विच इज आस्किंग यू टू गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। हमें रीजंस बताने हैं कि ऐसा क्यों होता है। सो पहला हमें क्या दिया गया है स्टेटमेंट, दैट इज द प्लेसेस नियर द इक्वेटर ऑलवेज हैव समर। तो इक्वेटर जो होता है, जो भी जगह इक्वेटर के आसपास होती है, वहां पे हमेशा समर क्यों होता है? इक्वेटर क्या है? पहली बात, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। तो इक्वेटर क्या है पहले समझ लेते हैं। इक्वेटर जो है वो अर्थ के बीचों बीच एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही तरफ से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे आएगी। मींस नॉर्थ से इक्वेटर का डिस्टेंस और साउथ से इक्वेटर का डिस्टेंस पूरा सेम होगा। तो मीन्स वो अर्थ के एकदम बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन है। अब उस रीजन के पास, मीन्स द रीजन नियर द इक्वेटर गेट्स द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट ऑल द ईयर राउंड। इट डज हैज अ समर थ्रू आउट द ईयर। तो इक्वेटर के पास क्या होगा? हमेशा एक ही तरह का सनलाइट हमेशा उसको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में सन की रोशनी कम या ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो जगह बीचों बीच है उसको हमेशा से वैसी ही रोशनी मिलती आ रही है जितनी उसको नॉर्थ जब सन के पास था या साउथ जब सन के पास था तब जितनी मिल रही थी। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ में जो थ्रू आउट द ईयर उसको हमेशा ही सनलाइट मिलती रहती है एंड इसी वजह से थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे समर होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। तो हमें सबको पता है कि अर्थ को क्या कहा जाता है? एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है? लेट्स फाइंड आउट। सो द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन इट। क्योंकि यहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है। इट हैज़ वाटर एंड एन एटमोसफेयर। यहाँ पे वाटर है और एटमोसफेयर है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन मेक्स इट सूटेबल प्लेस टू सस्टेन लाइफ। और इसका जो डिस्टेंस है सन से, वो इस जगह को, मीन्स वो अर्थ को एक सूटेबल प्लेस बनाता है जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सो द मेन रीज़न जिसकी वजह से अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है इज बिकॉज यहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है। और लाइफ क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि यहाँ पे वाटर और एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, साथ ही में इसका सूरज से जो डिस्टेंस है वो बहुत ही सूटेबल है जिसकी वजह से लाइफ प्रेजेंस हो सकता है। क्लियर?
Next, moving on to our last question and the last statement for this question also, that is, days and nights are not equally divided in most part of the earth. तो जब हमने पढ़ा था कि रात और दिन कैसे होते हैं, उस क्वेश्चन में हमने ये भी पढ़ा था कि डेज और जो नाइट्स होती हैं वो इक्वली मीन्स 12 आवर करके इक्वल डिवीजन में नहीं होते मोस्टली प्लेसेस में, मोस्ट प्लेसेस पे, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? दैट इज बिकॉज द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टिल्ट, बिकॉज अर्थ की जो एक्सिस होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है। ड्यू टू दिस डेज एंड नाइट्स आर नॉट डिवाइडेड इक्वली इंटू 12 आवर्स ईच इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। और इसी की वजह से दिन और रात 12 आवर्स में डिवाइड नहीं होते मोस्टली डिफरेंट पार्ट्स में अर्थ के, ठीक है। सो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से 12 घंटों की रात 12 घंटे की दिन हम मोस्टली प्लेसेस में नहीं देख पाते, क्योंकि जो अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, उसका जो एक्सिस होता है वो थोड़ा टिल्टेड होता है। क्लियर? So students, that's all for today's video. Also, this marks the ending of this chapter. In our next video, we will come up with another new chapter and its explanation. Till then, stay tuned and thank you.